Hello students, this is the fifth video for the louse and the mosquito. In the previous video, we had solved some of the exercises, some of the question and answers. In this video, we are going to have a glance upon some of the writing skills given in this chapter. We are also going to complete the grammar portion given in this lesson and some of the fun with the vocabulary. So this is what we are going to learn in this chapter. So without any delay, let's start the lesson. The lesson name is The Louse and the Mosquito, written by Vikram Sheth. The question is, imagine you are the niche of creep. The louse who has somehow managed to survive. Write a letter to your friend expressing your feeling at the ingratitude of the mosquito. It means you have to imagine that you are the creep who has survived, who managed to survive, and you have to write a letter to your friend narrating about your survival, and you have to also name the culprit who was the main victim of the whole incident. Let's see. Actually, you may see on the screen that it is blurred. Whatever am I telling you, just listen and write down in your copy. Dear Creepy Creep, I am writing this letter from an unknown place. I am very frightened and in pitiful condition. My whole family has been killed in a dreadful manner. It was due to that culprit mosquito who betrayed us and laid our family to death. At first, the culprit mosquito glibed with my auntie. He insisted to be our guest only for a night. Poor auntie was trapped in his voice. But she warned the mosquito to control himself and not to bite the king until he sleeps. The mosquito could not resist himself, and avoiding the instruction of the louse, he leaped upon the back of the king and beat him. Bit. King became furious and asked his men to search the bed. Meanwhile, the mosquito hid himself in canopy. Alas, my auntie and other family members were found and killed. I somehow managed to slid from there. Your friend Creepy. Your friend Creep. Lazy Creep. So this was a letter written by the Lazy Creep, who was the cousin of the Creep, to her friend. क्या लिखा है चिट्ठी में? मैं एक अज्ञात जगह से तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं और मुझे डर लग रहा है अपने इस दयनीय स्थिति पर। मेरा पूरा परिवार एक बड़े ही भयानक तरीके से मार दिया गया है और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो विद्रोही, वो विश्वासघाती मच्छर था। सबसे पहले वो विश्वासघाती मच्छर ने मेरी आंटी को अपनी बातों के जाल में फंसाया और सिर्फ एक रात के लिए मेरा गेस्ट बनने के लिए राजी होने को कहा। मेरी आंटी उसकी बातों में आ गई, लेकिन उन्होंने वार्न किया था मॉस्किटो की अपने ऊपर नियंत्रण रखना और किसी भी हाल पर राजा को तब तक नहीं काटना जब तक कि वो सो नहीं जाता है। लेकिन राजा के आने के साथ ही मॉस्किटो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और लाउस के इंस्ट्रक्शन को दरकिनार करते हुए
नहीं मानते हुए वो राजा की पीठ पर जा बैठा और उसने उसे काट लिया। राजा गुस्सा हो गया और उसने अपने आदमियों को बेड को सर्च करने को कहा, बिछावन को देखने को कहा। इसी बीच मॉस्किटो जो था वो उड़ करके कैनोपी में जा करके छुप गया और मेरे पूरे पूरे परिवार के सदस्य पकड़े गए और मार डाले गए और मैं किसी तरह जान बचा करके वहाँ से भाग गई। ये एक चिट्ठी है लेजी क्रिक के द्वारा अपनी फ्रेंड के पास। नाउ अब चलते हैं टेस्ट योर ग्रामर। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसको लिखना है। दिस इज ब्यूटीफुल ड्रेस, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। इसका आप एक्सक्लामेटरी बना सकते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव ड्रेस, ये आप कर सकते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो होगा वो लास्ट में डालेंगे। हिज डेथ वॉज रैदर शॉकिंग, ओह हिज डेथ वॉज शॉकिंग। अच्छा, ओ के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दिया हुआ है। सी आई एम बीइंग बीटन बाय अ स्कॉर्पियन, ओह अ स्कॉर्पियन हैज बीटन मी। ओ के बाद फिर यहां देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। कैन समवन हेल्प मी, आई एम ड्राउनिंग, हेल्प आई एम ड्राउनिंग। हेल्प के बाद फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग को यथावत रखेंगे और लास्ट में जो है आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। इन द क्वेश्चन नंबर 2 of the segment C, rearrange the following words to make meaningful sentence। यानी आपको जम्बल्ड जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला का जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, दे हैव इनवाइटेड लता एंड निशा। सेकेंड, द लेटर्स वेयर गिवन बाय शीला टू हर मदर, ये बनेगा। तीसरा, द गिफ्ट बाय विच निशा सरप्राइज्ड वॉज गिवन बाय हर फ्रेंड, ये बनेगा। चौथा, आर्मी ब्लू ऑफ द ब्रिज विद बॉम्ब्स, ये चौथा बनेगा। पांचवा, दीज देयर वेयर नॉट मेनी मैंगोज दिस सीजन, ये बनेगा पांचवा। अब चलते हैं अगले में। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द पोएम। पोएम में जितने भी एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उनको लिखना है। एंसेस्ट्रल है एडजेक्टिव, क्वाइटली है, डिस्क्रीटली है, हॉस्पिटलिटी है और डिटेक्शन है। यही 5 एडजेक्टिव इस पोएम में यूज किए गए हैं। फन विद वोकैबुलरी। द लाउस हैज बीन एप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रीप। लाउस का नाम जो है क्रीप दिया गया है क्योंकि वो क्राउल करता है, वो स्लाई है। और मॉस्किटो का नाम जो है इस पोएम में लीप दिया गया है। तो आपको कुछ ऐसे ही फनी नेम्स इन जानवरों के बारे में, इनके बारे में देना है, इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है फ्रॉग। फ्रॉग को मैंने नाम दिया है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इट कैन जंप 20 टाइम्स देयर बॉडी लेंथ। ये अपने बॉडी लेंथ से 20 गुना ज़्यादा उछाल ले सकता है, इसलिए मैंने एक फनी नाम थ्रस्ट दिया है फ्रॉग को। उसके बाद है रैट। रैट को मैंने ब्यूरोवर नाम दिया है। इसका जो एक ब्यूरो है वो लगभग जमीन से 300 फीट नीचे तक की हो सकती है। उसके बाद स्नेक। स्नेक को मैंने वेवी नाम दिया है क्योंकि यह पानी के तरंगों की तरह वेव मोशन में चलता है, तरंग की तरह चलता है, इसलिए वेवी कहा गया है। टाइगर को मैंने शिवरर नाम दिया है क्योंकि इसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है कि ये चलते समय अपने पाँव के ऊपर इसका पूरा भार आ जाता है और इसके वजह से इसके पाँव जो है कांपने लगते हैं। इस वजह से यह धीरे चलता है, इसलिए मैंने टाइगर।
इसके बाद लिजर्ड। लिजर्ड को मैंने गेटर नाम दिया है, गेटर। क्यों? क्योंकि यह अपने दोनों ही अल्टरनेट लिम्स यानी राइट लिम और लेफ्ट लिम को बारी बारी उछाल उछाल करके चलता है। उसके बाद चीता। चीता को हंटिंग लियोपार्ड कहा जाता है, क्योंकि किसी ज़माने में चीता को लोग डोमेस्टिकेट करके यानी टेम करके रखते थे शिकार करने के लिए। क्रोकोडाइल बड़ा ही आसान है, क्राइंग क्रिप, क्योंकि यह हमेशा रोता रहता है और यहाँ तक कि जब यह अपने शिकार को खाता है, इट विप्स वाइल डेवोरिंग इट्स प्रे, यानी अपने शिकार को डेवोर करते वक्त भी ये रोता रहता है। पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन को मैंने नाम दिया है क्विल पिग। ये पॉर्क्यूपाइन का लैटिन नेम है। और क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यह पिग की तरह मूव करता है और इसके शरीर पर जो है क्विल्स होते हैं, जो कि खतरा होने की स्थिति में अपने ये क्विल्स को खड़ा कर लेता है। So students, this is all for today. In the next video, we'll move to the next lesson of this book. Till then, it's time to say you bye. Take care of yourself.